We continue our journey with the force, right? We talked about the first law and the second law. So the first law says that force is required to change the state of motion. है ना? Is it the short way to say it? Mm-hmm. If there is no force, the state of motion will not change. And then second law says if the force required applies, then what happens? Force applies, then what happens? Force is proportional to the mass and acceleration of the object. Yeah, but we dig a little deeper, right? This is right. We saw, well, it depends on if the object was already at rest, the force will cause an acceleration in the direction of the force, ठीक है. right? Hmm. And that will increase the speed. Hmm. If the body is already moving, then depends on the relative direction between the initial velocity, the velocity at that instant, and the direction of the force. If the force is along the velocity, the speed increases, the direction remains unchanged. If the force is opposite to the direction of velocity, the speed decreases, the direction remains unchanged. If the force is perpendicular to the velocity, the speed does not change, and that direction, it becomes a curve. It takes a curvilinear path, right? And if the force has a component in the direction of velocity and a component perpendicular to the direction of velocity, then the perpendicular component will change the direction, and the along component, depending on whether it is along the velocity or opposite to the velocity, it will increase or decrease the speed. Is that a better way of summarizing the second law? Okay. Does it make sense? Right? Hmm. Yeah, because that actually helps us in doing things, right? Not just philosophically saying the large statement, because we have to ultimately depends on, that as they say, the devil is in details, right? So you have to detail it out then to solve crack the actual problems, right? Wait a Actual. second, can you say it once more? I just think I heard something wrong. Can you just say it once more? हाँ जी. जो आपने अभी कही in detail. आप बताओ नहीं नहीं, I think I heard something wrong. किस बारे में. You said हाँ. कि so I said कि acceleration and mass are directly proportional to force, and you said हाँ, hello. या. Yeah. So you said ki it does not change, and if it's at rest, then acceleration increases in the direction of force, या. right? या. So I didn't understand. एक्सेलेरेशन So, इंक्रीजेस नहीं, एक्सेलेरेशन हैपेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट. but that's only in one specific scenario, right? Not the general. नो, अब यू से अगेन योर लाइन व्हाट यू सेड. एक्सेलरेशन व्हेन यू अप्लाई फोर्स दैट हैपेंस. The object accelerates in the direction of force. When we apply force, the acceleration increases in the direction of force. You saw something like this. मैंने कहा था the body accelerates. This is you. This agree with this or not? मैंने कहा था the body अच्छा ये accelerates. बताओ ना, चलो मैंने ये सुना था जो आपने कहा था. Is Okay, this the right statement or wrong statement? it's wrong. It is a wrong statement. क्या होना चाहिए? How to correct it? When we apply Um, force, the acceleration so acceleration may not necessarily increase. takes place in the direction of force, right? We cannot tell whether it has increased or decreased, right? Acceleration is a snapshot. It is a picture. Now, it cannot tell about the past acceleration. It cannot tell about the future acceleration. So whether it is increasing or decreasing, we cannot say. We can say the acceleration takes place. And how much is that acceleration? That acceleration is force divided by mass. It is assuming that the mass is constant. Assuming the mass of the object is constant. Right? Okay. फिर हमने ये भी कहा व्हाट डज द फोर्स. नो फोर्स हमने कहा नो नेट फोर्स. नो नेट फोर्स व्हाट हैपेंस? नो चेंज.
in the state of motion of the object. नो चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या हुआ? नो चेंज इन स्पीड. नो चेंज इन डायरेक्शन. If the net force is zero and vice versa. And vice versa का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब Um, if there if is there's no no change in change in speed. direction, then there's no change in speed. No, no, no. If there is no change in speed, if there is neither a change in speed nor a change in direction, in other words, no change in the state of motion. In other words, no change in the state of motion. It implies that no net force was acting. No net मतलब unbalanced. Force was is acting at that instant of time. ये क्या चीज लिखी हमने? If there's First. neither a change in speed nor a change in direction, in other words, no change in the state of motion, So this it is the implies first that law. Yeah, it implies. no net or unbalanced force is acting at that instant of time. So ये पूरा मिला के क्या लिखा है हमने? फर्स्ट लॉ, राइट? Hmm. दिस इज द फर्स्ट लॉ. फिर सेकंड लॉ का क्या यूज किया हमने? सेकंड लॉ क्या कहता है? इफ नेट F फोर्स equal इज to एक्टिंग, इफ नेट फोर्स is acting, then what happens to the state of motion? That what happens to the state of motion. ठीक है जी? ठीक तो है. हम एक में पहले एक एजम्पशन कर लेते हैं. एजम्पशन, मास इज कांस्टेंट. एजम्पशन मास इज कांस्टेंट, राइट? अगर ये एजम्पशन सही नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर हम बात करेंगे इस बारे में. अभी ये बात करें. नेट फोर्स इज एक्टिंग, व्हाट हैपेंस टू द स्टेट ऑफ मोशन? बताओ, इसमें क्या देखा हमने? तुमने क्या देखा? फर्स्ट कंडीशन, v इज जीरो. तब क्या होता है? वी गेट a इज इक्वल टू f by m एंड दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. ये तो हमेशा ही ठीक होगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड कह सकते हैं इसको हम, वेलोसिटी एज वेल एज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड. तो स्पीड इंक्रीजेस एंड डायरेक्शन सेम. ठीक बात है. ठीक है. अगर v इज नॉट जीरो, अब क्या होने वाला है? अब डिपेंड्स ऑन वेदर f इज पैरेलल टू v, सेम डायरेक्शन इज v. व्हाट हैपेंस? It speeds up or can slow down. स्पीड इंक्रीजेस पैरेलल टू v, सेम डायरेक्शन. अच्छा, okay, okay, okay. Speed increases, no change in direction. F is anti-parallel. Anti-parallel मतलब अपोजिट डायरेक्शन. F अगर ऐसे है और V ऐसे है, अपोजिट डायरेक्शन, तब क्या होगा? जैसे बता रहे, स्पीड विल डिक्रीज एंड डायरेक्शन नो चेंज. ठीक है, ये पिछली बार हमने सब कर लिया. द लास्ट क्लास वाज डिवोटेड टू दैट ओनली, राइट? फिर थर्ड केस क्या हो सकता है? F इज परपेंडिकुलर टू V. अब क्या होगा? स्पीड नो No चेंज. change in speed
and curve path right. Direction changes in a curvilinear path. Right. फिर चौथा हमने क्या देखा था? F neither parallel nor perpendicular. F we have a angle theta and theta Which is is not 90 or not 0. not 0, not 180 degree, not 90 degree. 180 डिग्री ये वाला केस था, एंटी पैरेलल वाला. Okay. ये पैरेलल वाला क्या था? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, 0 डिग्री. और ये वाला क्या था? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. अगर इन तीनों में से ना हो तब क्या होगा? बता सकते हैं? Okay. थीटा इज थीटा. तो 0 भी नहीं है, 180 भी नहीं है, 90 भी नहीं है. तो अब क्या हो सकता है? थीटा एक्यूट हो सकता है या ऑब्ट्यूज हो सकता है. दो बातें हो सकती हैं. लेस देन 90 हो सकता है, मोर देन 90 हो सकता है. समझ में आ रही बात? Okay. अगर लेस देन 90 हो तो क्या होगा? ये वेलोसिटी है, ये फोर्स है. थीटा इज लेस देन 90 डिग्री. और ऑब्ट्यूज में क्या होगा? ये वेलोसिटी है, ये फोर्स है. एन एंगल बिटवीन देम इज थीटा इज मोर देन 90 डिग्री. बोलो इस केस में क्या होगा? तो हाँ, एक सेकेंड. तो इट विल मूव बिटवीन द एफ एंड वी इन अ curvilinear manner. तो एक सेकेंड, फोर्थ केस में स्पीड विल इंक्रीज हाँ, स्पीड विल इंक्रीज एंड और डायरेक्शन विल डायरेक्शन बी between f and v in a यू. curvilinear manner. ऐसा हम्म. इट वॉज गोइंग लाइक दिस, इट टेक रिटर्न लाइक दिस. हम्म. और ऑब्ट्यूज में क्या हो जाएगा? अच्छा, एक सेकेंड, एक बात बताइए. स्पीड इज डिक्रीजेस दिस और डायरेक्शन अभी भी यही रहेगी. बोलो आप क्या बोल रहे हो? हाँ, इज दिस पैराबोलिक मोशन? नो, इट्स नॉट पैराबोलिक मोशन. नॉट नेसेसरीली. पैराबोलिक मोशन डिपेंड्स ऑन, अभी तो हम सिर्फ इस इंस्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं. बट दिस विल नॉट लीड टू पैराबोलिक मोशन. पैराबोलिक मोशन उसमें होगा जब 20 तरफ थी और फोर्स ऐसा लगे परपेंडिकुलर हर समय. फोर्स डायरेक्शन नॉट चेंजिंग, फोर्स डायरेक्शन डाउनवर्ड ऑल द टाइम. अब क्या होगा? ये थोड़ा सा चलेगा, जब यहां पहुंच जाएगा. अब इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, मगर फोर्स अभी भी इस तरफ है. पहले फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी था, अब फोर्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी नहीं है. तो फोर्स का एक कंपोनेंट स्पीड को बढ़ाएगा और एक कंपोनेंट को घुमाएगा. तो ये ऐसे करके चलता रहेगा. ये ऐसा मोशन कब होता है? जब किसी बॉल को हम हवा में फेंक दें, किसी स्टोन को हवा में फेंक दें. ऐसा भी हो सकता है, किसी बॉल को हम हवा में फेंक दें ऐसे. तो दिस मोशन इज कॉल्ड पैराबोलिक मोशन. व्हाई इज दिस कॉल्ड ए पैराबोलिक मोशन? दैट यू डोंट नो येट, बिकॉज यू डू नॉट नो व्हाट इज ए पैराबोला. राइट? तो वो बताएंगे, उसके बाद आपको समझ आएगा इसको पैराबोलिक मोशन क्यों कहते हैं. उसके पहले ही जानना Well, पड़ेगा कि व्हाट इज ए पैराबोला. यू नो व्हाट इज ए स्ट्रेट लाइन, यू नो व्हाट इज ए सर्कल, बट डू यू नो व्हाट इज ए पैराबोला? यू डोंट. राइट? ठीक. ठीक है. तो ये बताएंगे, उसके बाद हम बात कर सकते हैं इसके बारे में. पहले हमें पैराबोला बताना पड़ेगा कि पैराबोला क्या है. क्या क्लास 9 में पता होना चाहिए पैराबोला क्या है? आई थिंक पता होना चाहिए. पता चल ठीक. सकता है, कोई ओके. दिक्कत नहीं है उसके अंदर. ठीक है. ओके, दिस वाज ए क्विक रिकैप. राइट? लेट अस. तो ये हमने कर लिया इस तरीके का. ये हमने किए भी थे ऐसे क्वेश्चन पहले, फिर उस 12 कर लेंगे. लेट अस सी सम. बताओ कुछ ये करें न्यूमेरिकल्स, उसके बाद थर्ड लॉ करेंगे आज. ये तो शायद कर लिया था कि नहीं? बताओ, चलो एनी हाउ. पढ़ो. Using a horizontal force V, sorry, F, a table is moved across the floor at a constant velocity.
how much for frictional force exerted by the floor on the table. ये क्या है? पढ़ो, समझो, एनालाइज करो, तब समझ में आएगा. रीड इट अगेन. व्हाट इज हैपनिंग? A table is at rest originally. Then we apply some force. Then we apply some force. उससे इसने ऐसा तो नहीं लिखा कि शुरू में रश्मि थी. चलो मान लेते हैं शुरू में रश्मि थी, कोई बात नहीं. हमें मतलब एम्बिग्विटी है कि शुरू में रश्मि थी कि नहीं थी, है ना. Okay. बट राइट नाउ द अच्छा टेबल इज. एक सेकंड हाँ. समझ में आ गया. हाँ. तो अगर इट्स मूविंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी राइट. तो एक्सेलरेशन इज जीरो. राइट. तो एफ इक्वल्स एम ए, राइट? तो मास छोड़ो, एफ इक्वल जीरो. Net force is zero because it is the first law. If something is moving in constant velocity, state of motion is not changing. That means the net force on it is zero. तो तो बताओ. अगर हम अप्लाइड फोर्स को वी रिप्रेजेंट बाय कैपिटल एफ एंड राइट. फ्रिक्शनल फोर्स को स्मॉल एफ से, तो देन राइट. कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ इज जीरो. तो एफ इज इक्वल टू एफ, मतलब बिग राइट. एफ इक्वल टू. राइट. नेट फोर्स लेकिन क्या लगता है इसके ऊपर? अगर एक फोर्स लग रहा है स्मॉल एफ, एक फोर्स लग रहा है कैपिटल एफ, दो फोर्स लग रहे हैं इसके ऊपर, है जी. तो नेट फोर्स क्या लग रहा है? मैंने पिछली बार बताया था इसीलिए वेक्टर्स के बारे में. नेट फोर्स क्या लगेगा? अगर मैं दो लगाऊं तो नेट फोर्स क्या लगेगा? इन दोनों का वेक्टर एडिशन. इन दोनों का वेक्टर एडिशन. एंड दैट इज इक्वल टू जीरो. तो स्मॉल एफ के बारे में हम क्या कह सकते हैं? इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कैपिटल एफ. इसका मतलब मैग्नीट्यूड इज सेम एज एफ एंड द डायरेक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एफ एंड दैट इज व्हाई द टोटल फोर्स बिकम्स जीरो. तो व्हाट इज आवर आंसर? माइनस एफ. Shall we say like that? That's a complete answer. Magnitude wise f, as you said rightly, but direction wise opposite. You see how important this जो हमने पिछली बार किया था, addition of vectors. ठीक है. ओके, नेक्स्ट बताओ. ये तो अच्छा बताया आपने. ओके. तो पहले में बॉल इज मूविंग on a smooth frictionless surface. So if no net force is applied on the ball, the velocity remains the same. So according to Newton's first law, object moves with constant velocity unless any net force acts on it. राइट. तो ठीक है. फर्स्ट में क्या चॉइस चूज करें इसमें? हम्म. फर्स्ट में क्या चॉइस चूज करें? इफ नोट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉल, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विल रिमेन द सेम, इंक्रीज, डिक्रीज. तीनों में से एक चूज करना है. It'll remain the same. तो हम इसको इसको हम चूज कर लें और इन दोनों को गलत कर दें. वेरी गुड. नेक्स्ट. हाँ, ओके. तो if net force is applied on the ball in direction of its motion, तो फिर magnitude of velocity will increase because force produces acceleration in the same direction as motion. All right. Magnitude of the velocity will increase. This is correct. And these two we cut. Very good. Next. Last में decrease because force applied opposite to direction of motion produces deceleration. Right. Okay. इसमें अगर मैं एक और जोड़ देता, फोर्थ, बताओ क्या जोड़ूंगा? If a net force is applied on the ball in the direction
perpendicular to the direction of motion. The magnitude of the velocity, will remain the same. हाँ, remain the same, will remain the same. फिर ये ठीक हो जाएगा. ये इनको देना चाहिए था, इन्होंने दिया नहीं. दे मिस दिस अपॉर्चुनिटी. फिर इंक्रीज ठीक। और डिक्रीज दोनों कट जाएंगे. बढ़िया हो गया. हम्म। नेक्स्ट बताओ. P experience net force. हाँ, करेक्ट. ये ठीक है. हम्म. P experiences net force, and what about the Q? It It does does not not experience. experience net force. Okay. बस फिर बाकी तो गलत है. एक ही करेक्ट. नेक्स्ट. सर एक बात बताइए. हम्म. ये मेरे पास तो आ गई, क्या आपके पास आई? क्या चीज? एक्सप्लोरेशन, ये क्या है? अच्छा, साइंस देख एक्सपेरिमेंट. लेंगे. चेक कर लेंगे. यू डिडंट गेट इट येट? नहीं, मैंने देखा नहीं. उसमें होगा. आ गया होगा ऑनलाइन. हाँ, नो, आई गॉट इट फ्रॉम स्कूल. ओके, ओके, ओके. ठीक है. हाँ. व्हाट इज दिस स्नेक बोट रेस? Vellum Kelly in Kerala. You know, there are long boats, and they make a boat race. There are long boats like this, and there are so many rowers. One, two, and they all row like this. They are all rowing. Their combined rowing power, 100 oarsmen, so are rowing a boat together. ठीक है. पढ़ो. Out of these, 95 are correctly rowing backward to propel the boat forward. But 5 जो है by mistake they are doing in the opposite direction. If ओके. each applies a horizontal force of 100 Newton, 200 Newton, what is the net force on the snake boat? बोलो. तो 200 इंटू 95 माइनस 5 इंटू 200. Yeah, 95 into 200 minus 5 into 200. So it becomes 200 इंटू 90. 90 into 200. 18,000. 18,000 Newton. Very good. That is the net force they are together applying. Right? अगर मैं इसमें आगे पूछूं, मान लीजिए, suppose the mass of the boat plus men, let us it is m kg, and acceleration of boat is a meter per second square. Calculate the drag force. In terms of m and a. क्वेश्चन समझ में आ गया? हम्म. बताओ. ड्रैग फोर्स को स्मॉल एफ ले लो आप, जैसे पहले लिया था. अप्लाई द सेकेंड लॉ. ठीक है. तो F इक्वल्स एम ए. राइट. तो 18,000 इक्वल्स. एफ इज इक्वल टू एम ए नहीं है लॉ.
एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, ये लॉ है. अच्छा. द नेट अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मल्टीप्लाइड विद एक्सेलरेशन. ठीक है, तो उस पर क्या फोर्स लग रहा है? 18,000 18,000. न्यूटन आगे लग रहा है. और पानी का ड्रैग क्या कहता है? बोट को स्लो करना चाहता है, तो पीछे लग रहा है स्मॉल एफ. तो स्मॉल एफ की वैल्यू बतानी है आपने, बताओ. तो वो हमने निकाल लिया था, दैट वाज 1,000 न्यूटन. नहीं नहीं नहीं, आप नहीं समझे. वो तो उनकी गलत रोइंग की वजह से था. उसमें हमने ड्रैग फोर्स को तो इग्नोर कर दिया था, फ्रिक्शन वगैरह को. तो वो तो सिर्फ अप्लाई जो कर रहे हैं फोर्स सब मिलके, उसमें सम 5 people वर अप्लाइंग रॉन्गली इन द रॉन्ग पर्पस. दे वर ट्राइंग टू रोव द बोट बैकवर्ड. तो बाकी जो 95 थे उनको सिर्फ अपनी एफर्ट के अलावा नेगेटिव एफर्ट को भी कैंसिल करना पड़ रहा था. तो नेट रिजल्ट 19 मैन के बराबर एफर्ट के बराबर ही बचा था. है, जस्ट थिंक अबाउट इट, राइट. ठीक है. मगर जब ये बोट आगे जाएगी, तो ये पानी क्या करेगा इसको? पानी को काट के जा रही है ना, तो पानी अपोज करेगा इसके मोशन को, बोट के. किसी भी फ्लूइड के अंदर अगर हम कोई सब्सटेंस को चलाते हैं, तो वो उसके मोशन को अपोज करता है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है. तो अगर इस तरफ जा रहा था तो इस तरफ फोर्स लगा रहा है वो. ड्रैग फोर्स, दिस इज द ड्रैग फोर्स. ठीक है. और अब ये बोट ए एक्सीलरेशन से जा रही है. एम इज द मास ऑफ दिस बोट प्लस मैन, इंक्लूडिंग द मैन, राइट, एंड द रो एंड एवरीथिंग, राइट. समझ में आ रहा है? ओके. तो क्या क्वेश्चन बनेगी? सेकंड लॉ क्वेश्चन लिखो, इसमें क्या दिक्कत है इसके अंदर? 18,000 आगे, एफ पीछे, तो क्या बचा नेट फोर्स? 18,000 माइनस एफ. एंड दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट? एम के जी इंटू. हाँ. तो फिर एफ कितना आ गया? एम ए प्लस एफ. अच्छा. ओके. ओके. हाँ. That becomes our answer to the question. The question I asked. 18,000 minus ME, right? मैंने M और A क्यों लिया? I did not want to hazard any guess regarding what is the mass of this snake boats, right? With so many men. But we can estimate. If there are 100 rowers, each rower is about, let's say, 60 kg. तो 100 into 60. 6,000. 60,000. 6,000 kg तो यही हो गया मास ऑफ मैन. और बोट का मास भी इतनी लोगों लेके जा रही है, तो कुछ तो भारी होगी बोट. What do you think should be the mass of the boat? 200. 200 kg. Why? 200 kg is very little, right? It's a big boat. 100 people are sitting in it. 10,000. It has to be strong, right? Yeah, I would say this thing may be about similar, right? So 12,000 kg. Acceleration may be about 1 meter per second square. So net force may be 12,000 Newton, right? 18,000 लगाया था इन्होंने. हाँ, तो 6,000 Newton should be the drag force nearly on this kind of boat. On this kind of boat. Huh? ठीक है. And this is, just expanding the problem and try to get a feel of it, right? Yeah. We can, of course, check on the, AI, that normally what is the mass of these kinds of boat, and, what kind of drag force is acting, and what kind of acceleration they can produce. Yeah. Anyhow, let us go ahead. बताओ next. ये तो आसानी है. एक सेकंड. In the direction of the force with acceleration proportional to the force. Fourth one, right? Hmm. Yeah. Next. क्वेश्चन क्या है? पोजीशन टाइम ग्राफ. ओके. नेट फोर्स एक्ट्स ऑन. ठीक है. ओके. मतलब
What do I do? ये क्वेश्चन पूछा तो है ना, नेट फोर्स एक्ट ऑन विच ऑब्जेक्ट, किस केस में नेट फोर्स लग रहा है? अच्छा, okay, okay. I thought they were saying net force acts on all of these, where I thought they skipped the question. They should say, को mention करना चाहिए, क्वेश्चन which बिल्कुल of ठीक है, these. लैंग्वेज इज परफेक्ट ऑफ द क्वेश्चन, राइट? I didn't understand. हाँ, तो जस्ट रीड अगेन देन, राइट? And net force acts on, they have put a colon, right? Colon means you have to choose out of these, right? ठीक है, I thought they've given it acts on all of them, but they didn't give Yeah, the but now criteria. you know that they can give like this also, right? हम्म Yeah. तो ओके, अब अगर लेट्स टेक ऑब्जेक्ट ए, ठीक है, Hmm. तो v वेलोसिटी इक्वल स्लोप, तो स्लोप इज कांस्टेंट, तो Right. मतलब एक्सेलरेशन इज जीरो, Right. तो इसमें नहीं लग रहा। इसमें नहीं लग रहा, इसको काट देते हैं। या वेरी गुड। नेक्स्ट। इसमें भी सेम है, इसका स्लोप इज कांस्टेंट विच इज जीरो। ये तो रेस्ट पे ही है बॉडी। हाँ, बट जीरो इज स्टिल अ कांस्टेंट, राइट? ठीक है। तो इसमें भी नहीं लग रहा। हम्म। इसमें वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, तो देयर मस्ट बी अ फोर्स। ऑल राइट। फोर्थ होना भी नहीं, इसमें भी वेलोसिटी नेगेटिव कांस्टेंट। है मगर कांस्टेंट है, राइट? ऑल राइट। यहाँ पर वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन। हियर द स्लोप इज इंक्रीजिंग, राइट? बिकॉज हम्म द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन। ऑल अच्छा राइट। सर, एक सेकंड, एक सेकंड, इसका स्लोप क्या होता है? इसका देखो स्लोप है, इनफाइनाइट कहते हैं इसको। इनफाइनाइट स्लोप कहते हैं इसको। हाउ इज दैट? स्लोप का मतलब क्या होता है कि मुझे कितना इधर जाने से मैं कितना ऊपर चढ़ा, राइट? ठीक है। अगर मेरी लाइन जितनी ज्यादा सीधी होती चली जाएगी, मान लो यहां पर मैं 1 चढ़ा, इधर 1 मूव किया, और यहां पर मैं 1000 जा रहा हूं, तो स्लोप कितना हो गया? 1000, राइट? वाई बाई एक्स, 1000 बाई 1, 1000, राइट? अगर मैं इस लाइन को और भी सीधा कर दूं, तो अब सेम 1 की 10,000 हो गई मान लो, तो स्लोप कितना हो गया? 10,000। तो भाई, आर्गुमेंट, लॉजिकल आर्गुमेंट सेज इफ इट बिकम्स और vertical, that means by almost not moving here, I'm moving extremely large distance. The numerator is extremely large and the denominator is extremely small. An extremely large number divided by an extremely small number is like an infinite number. And that is why we say the slope is infinite. You can also say the slope is not defined because the infinite is not really defined, right? There is nothing like infinite you can define. So some people can say not defined, but non-defined is not, doesn't give any graphic view, right? Infinitely large, you can say it. The slope is infinitely large. So that covers the not defined also, and it also tells it is, because it is infinitely large, not infinitely small or like that. It also tells the direction is, infinitely small but positive. Make sense? हम्म Next बताओ. This will do the action reaction in the next chapter, but still we can do it, right? The next part of the chapter. हाँ, द बोट Third विल law. मूव, यस, बिकॉज ये जब आगे जा रहा है ये वाला पैर इस डायरेक्शन में, राइट? Hmm. हाँ, तो व्हेन दिस गोज फॉरवर्ड इट विल पुश दिस बैक। हाँ, मतलब अब इस पैर की बात ना करो, आप इसी पैर की बात करो, ज्यादा अच्छा रहेगा। कि ये पैर देखो बोट से टच कर रहा है, तो बोट को क्या कर रहा है? पीछे पुश कर रहा है, और बोट इस आदमी को आगे पुश कर रही है। एंड दैट इज व्हाई द मैन इज एबल टू जंप हियर, बट द बोट विल गो दिस साइड बिकॉज द फोर्स इज एक्टिंग इन पेयर्स. इफ द मैन इज गेटिंग ए फॉरवर्ड फोर्स,
Somebody must be applying that forward force, and that who applies is the boat. And then must tit for, since the forces are tit for tat, the man must be applying a backward force on the boat, so boat will move backward. The boat moves like this, and the man moves like this. ओके, ठीक है, इसमें बताओ ड्यूरिंग हाई जंप इवेंट. बिकॉज दिस, तो ये नीचे जा पाता है A ऐसे, landing mat or sand bed is placed for the athlete to fall on. फॉलो करो, Why? क्योंकि ये नीचे जा पाता है, इट्स कंप्रेसिबल, तो दिस डजंट अप्लाई दैट मच फोर्स ऑन द एथलीट, तो चोट दिस करना लगे इसको, प्रिवेंट्स राइट? शॉक्स। या टू प्रिवेंट इंजुरी, राइट? टू प्रिवेंट इंजुरी. Seventh and eighth, they, set you for the third law. That's the purpose of these questions. ओके, Because he is making a transition to the next part of the chapter, which is the third law. ये बताओ. ये तो थर्ड लॉ के शुरू हो गए सारे. थर्ड लॉ इसके पहले था क्या? थर्ड लॉ उसके बाद था. अच्छा, हमने थर्ड लॉ पढ़ा ही नहीं है, पहले में क्वेश्चन शुरू करनी है. दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग. ओके. फोर्स इज एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट्स. ओके ओके. तो चलो, ये फिर बाकी कुछ थर्ड लॉ के आ रहे हैं क्वेश्चन, इसलिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन, राइट? इसको थोड़ा देखेंगे तब हमारी बात बनेगी इसमें, राइट? ओके, बताओ थर्ड लॉ क्या कहता है? व्हाट्स हैपनिंग? व्हाट इज शी डूइंग? Using her both hands, she is pushing the table. So what happened? That chair goes back, right? You would have seen बिकॉज that. द टेबल पुट्स एन इक्वल फोर्स ऑन इट। Right. So this red force is the putting, किस पे लग रहा है ये? रेड फोर्स के लिए बताओ, ये रेड वाली लाइन जो है, ऑन whom, by whom? ऑन, बाई, इसको रेड कलर से ही कर देता हूं. ये जो रेड फोर्स है, बोलो ऑन, बाई, और ग्रीन वाला ऑन, बाई, बोलो. ठीक है, रेड फोर्स से लग रहा है ऑन. तो रेड में बाय द गर्ल ऑन द हाँ, टेबल, और नेक्स्ट में बाय द टेबल ऑन द गर्ल। ऑन गर्ल, बाई टेबल, and together they make a pair of forces. So forces act in pairs. Forces act in pairs, equal and opposite. ठीक, How many forces are acting on the table? फ्रिक्शनल फोर्स, मस्कुलर वो फोर्स, छोड़ दो, इसकी बात करो भी. चलो, हाँ चलो, वो भी ठीक बता सकते हैं. इसके भी इस वजह से बताओ. How much, how many मस्कुलर, forces? Only one force is acting on the table, right? Which is the red one, right? Only one force is acting on the girl. We are talking about this pair of forces, right? So do the forces balance each other? क्यों जी? Do these forces balance each other? Do बैलेंस ईच अदर, क्या कहोगे आप? डू दे बैलेंस ईच अदर? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स इज बैलेंस्ड? वो कब करते हैं हम? जैसे यहां पर अगर मैं इसके ऊपर एक फोर्स ऐसा लगाऊं और एक फोर्स ऐसा लगाऊं, लेट्स से बोथ आर 100 न्यूटन, तो हम क्या कहेंगे? यस, दीज फोर्सेस बैलेंस ईच अदर.
मगर टेबल पर तो एक ही फोर्स लग रहा है, तो दिस फोर्स बैलेंस इच अदर? नो, नो, because they are acting on different bodies. On girl, only one force is acting. On the table, only one force is acting. And since only one force is acting on the girl, and the rolling friction is very little, so girl moves backward. But what about the table? Table is lying on the ground, and there is a roughness. So when this force says, "Okay, table, go this way," what does the ground say? No, ground will produce the friction force this way, and the table will not move. इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू कितनी है? इस फोर्स के अपोजिट एंड इक्वल, बिकॉज द टेबल इज नॉट मूविंग, सो द नेट फोर्स ऑन द टेबल इज जीरो. इज इट वेरी क्लियर? राइट. व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ? देखो कंक्लूजन क्या ड्रॉ किया इसने. When you applied a force on the table applied a force upon you in the opposite direction. कब? When मतलब सेम टाइम के लिए, साइमल्टेनियसली, है ना? So the bodies apply equal and opposite and simultaneous forces on each other. Interacting bodies, interacting objects apply equal in magnitude, opposite in direction, and simultaneous forces on each other. That is the third law. This is the third law, Via. This is the. Can you read it? Hmm? You can write it down also. Shall I read it? Interacting objects. Who are the interacting objects here? The table and the girl. Interacting objects apply equal in magnitude and opposite in direction and simultaneous forces on each other. Simultaneous मतलब जब ये टेबल को पुश करना बंद कर देगी तो टेबल भी इसको पीछे धकेलना बंद कर देगी. अगर ये टेबल को पुल करेगी तो टेबल इसको आगे पुल करेगी. जब पुल करना बंद कर देगी टेबल भी बंद कर देगी. तो जब एक फोर्स लगेगा तभी दूसरा भी लगेगा. ऐसा नहीं है कि मैंने अभी लगाया तो मैं तुम पे मैं थोड़ी देर बाद लगाऊंगा, या पहले से ही लगा देता हूं, मुझ पे लगाया इसके पहले मैं लगा देता हूं. ऐसा नहीं है. फोर्सेस आर साइमल्टेनियस एट द सेम टाइम. ठीक है, राइट. तो दैट इज द थर्ड लॉ. दैट इज द थर्ड लॉ. सेकेंड एग्जाम्पल क्या दिया इसने, अब पढ़ो. इफ यू आर सिटिंग ऑन ए बाईसाइकिल एंड यू वांट टू मूव फॉरवर्ड, यू वांट टू मूव फॉरवर्ड विदाउट पेडलिंग, तो आप ग्राउंड को पीछे पुश करो. ग्राउंड को पीछे पुश करो, ग्राउंड आपकी लेग्स को आगे पुश करेगा. अब लेग से तो आपने पकड़ी हुई है साइकिल, तो जब लेग्स आगे जाएंगी तो साइकिल भी आगे जाएगी, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन योर बॉडी एंड द साइकिल. ए पार्ट ऑफ द फोर्स विच योर बॉडी गॉट फ्रॉम द ग्राउंड will transmit to the cycle also. So both cycle and you go forward. You are sharing that force. आपको समझ आया? Can you repeat what I said? How this girl is moving forward? हाँ, तो she's not sitting on the bicycle, and when she pushes the ground with her feet, then the ground pushes her back as well. फिर से बताओ. तो शी इज नॉट सिटिंग ऑन द बाइसाइकिल, मतलब जैसे Why बाइसाइकिल why पे, this is important? She is sitting on the bicycle. मतलब शी इज नॉट राइडिंग इट जैसे बाइसाइकिल पे करते हैं ना. मतलब you should say that she is not pedaling, but that's all you should say. या She is not pedaling. शी इज She नॉट is पेडलिंग, sitting. शी इज पुशिंग द बाइसाइकिल by sitting on the seat and her feet are on either side. She is pushing it with her feet. नहीं 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 नहीं. She is not pushing the bicycle. Please try She to is understand. pushing the ground. हाँ, she is pushing the ground backward. She is pushing the ground
backward, and yeah, the ground puts a These are her forward force shoes. on her. Ground This is puts a her forward shoe force. with her shoe, and this is the ground. Hmm. So she's her feet, her shoe say to the ground go back. The So ground ground says go applies forward. this force on और her. फिर because of inertia she pushes the bicycle forward. है ना? What do you mean by that? What do you mean by that? मतलब ग्राउंड उस पे फोर्स लगा रहा है तो वो आगे जा रही है, और शी नहीं। इज होल्डिंग द बाइसाइकिल, तो हाँ, तो तो अभी अभी बाइसाइकिल भी अभी आगे अभी जा रही है। अभी फोर्स कहाँ लगा? फोर्स ग्राउंड से इसको कहाँ मिला? कहाँ मिला? इट्स ए कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट? वो कहाँ लगता है? एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो उसकी बॉडी को फोर्स कहाँ मिला? एट द शू, एट द शू। बट शूज कनेक्टेड टू द लेग, तो शू सेज टू द लेग, ओके लेग यू ऑल्सो मूव, बट द लेग इज कनेक्टेड टू द बॉडी, तो लेग सेज टू द बॉडी, बॉडी मूव फॉरवर्ड, but the body is sitting on the cycle. So there is a friction between the seat and her body, and maybe she is, clutching the, इसकी body का कुछ हिस्सा इसको साइकिल को टच कर रहा है यहाँ से. तो when the body move forward, the cycle which is, touching the body, because of friction forces, the cycle also move forward. So try to break it into smaller details, right? Rather than using big words like inertia and this thing, right? Doesn't help. Try to simplify it, right? Can you now again explain me what is happening here? Okay, so the girl is not pedaling, her feet are on Right, either side of the bicycle and she's sitting on the seat. right. ठीक है? हाँ, तो she's pushing the ground backwards with her feet, right. and the ground opposes this force by applying an equal and opposite force in the forward direction. Very good. That is the So third law. hmm. Right, So that's why the girl is pushed forward by the ground. right. Since she's holding the bicycle, even the bicycle moves with her. Very good. She's holding the bicycle where? Here, At the handle. here, here, maybe somewhere here, here. So from these contact points, the force of the ground is shared by her with the bicycle also. And both bicycle and the girl, they move forward. Right, right. Okay. If the girl was not sitting, suppose she was standing, will it be easy for her? If the girl was standing, then she's not touching the seat, right? तो अगर ग्राउंड के पीछे कुछ कर तो क्या होगा? घर आगे चली जाएगी, बट साइकिल में स्टे वेयर इट इज, राइट? तो इट इज इंपॉर्टेंट सिटिंग ऑन द साइकिल, राइट? इट विल हेल्प हर. यू कैन ट्राई विद योर बाइक, राइट? विद योर बाइसाइकिल यू कैन ट्राई. यू हैव ए बाइसाइकिल? No. यू डोंट. बाय. दुबई इज I ऑल्सो लाइक mean, इंडिया. यहाँ पे यहाँ पे there is not enough space. There's only Yeah, space for cars. that's what I'm बस यहाँ saying. पे एक लेक है, वहां It पे is. you can, So it's लेकिन like you India. can't. It's like India only, huh? There is no space for cyclists. India Okay. also nobody, by driving a bicycle is very, very risky, hazardous. अच्छा. Yeah, But yeah, there's it's not because of ये too much vehicles जैसे इंडिया में. yeah, यहाँ पे it's because of more space for cars rather than too many vehicles. yeah, yeah. There are no cycle But tracks. हाँ, but यहाँ पे there are these temporary bicycles, so you can buy them. Yeah, जैसे yeah, you want to go somewhere, yeah. Rent you them. can, हाँ, so you can rent it for 2 hours. Yeah, yeah, You yeah. can go there, Okay. spend how much time you want, and then return it to the stand. Yeah. So when you get a chance, you can try this, right? Hmm. Okay. Okay. And I think now we are idea. But how is this man moving? He was standing, but now he's हाँ, moving. He must get a forward force. Who is applying that forward force? the ground. कैसे इसने क्या किया? ग्राउंड को. इसने ग्राउंड को पीछे पुश किया, ग्राउंड ने इसे आगे पुश किया, तो राइट. he moved forward. कौन से पैर से पुश कर रहा है ग्राउंड को? आगे वाले पैर से कि पीछे वाले पैर से? पीछे वाला. पीछे वाले पैर से, नॉट आगे वाले. ही इज डूइंग इट फ्रॉम बोथ एक्चुअली. तो क्या होता है कि अगर ऐसे है, आप ठीक आप है, करके देखो, आप ट्राई करो. खड़े होकर ट्राई करके देखो.
टेक ए स्टेप। देखो कहाँ से आपका फोर्स लग रहा है, आगे वाले पैर से लग रहा है, पीछे वाले पैर से लग रहा है? आगे वाले पैर से लगेगा, पीछे से नहीं लगेगा। पीछे वाला तो आप उठा रहे हो आगे बढ़ाने के लिए, इसको तो आप लिफ्ट कर रहे हो, राइट? ओके। यू आर शाई ऑफ दैट। लेट अस सी। आई मूव लाइक दिस। आगे से फोर्स लगा रहा हूं, पीछे तो उठा रहा हूं बस मैं। पीछे वाला नॉट रियली पुशिंग। ये गलत बनाया इन्होंने, ये गलत बनाया इन्होंने। हम्म। आगे वाले से आप इसको पीछे पुश करेंगे ग्राउंड को, राइट? हाँ ठीक है। और जब पीछे पुश करें, अच्छा, तो फिर फोर्स कहां से मिलेगा आपको? इसी जगह से तो मिलेगा दोनों। एक्शन एंड रिएक्शन कहां से मिलेंगे? सेम कॉन्टैक्ट पॉइंट, नॉट फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टैक्ट पॉइंट। एक सेकंड सर। हाँ। एक्शन यस। रिएक्शन एक्ट एट सेम पॉइंट, एट सेम पॉइंट। जैसे उन्होंने बनाया है, ऐसे ऐसा इंप्रेशन पड़ रहा है कि एक पैर पे आगे वाला फोर्स मिल रहा है, एक पे पीछे वाला फोर्स मिल रहा है। ऐसा नहीं है। जो आगे वाला शू है, आगे वाला शू, राइट, इससे क्या कर रहा है? ग्राउंड को पीछे पुश कर रहा है, और ग्राउंड को इसी जगह से आगे पुश कर रहा है। तो फॉरवर्ड फोर्स किसको मिल रहा है? आगे वाले पैर को। मगर आगे गिरेगा तो फिर ये पीछे वाले को खुद ही उठा रहा है अपनी मसल्स यूज करके। ही जस्ट लिफ्टिंग इट, राइट? इट इज जस्ट लिफ्टिंग इट so that he can take it forward, and then this become the forward fit. फिर यहां से फोर्स मिलेगा, ग्राउंड को इधर से पुश करेगा तो आगे फोर्स मिलेगा। तो ऐसे एक पैर, एक बार लेफ्ट पैर से ग्राउंड को पुश पुश पीछे पुश कर रहा है, एक बार राइट पैर से पुश कर रहा है। बढ़िया बात है। फिर ऐसे करके चल रहा है, एक बार लेफ्ट से पुश कर रहा है, फोर्स आगे मिल रहा है, फिर तो आगे तो अगला पैर भी तो आगे रखना पड़ेगा, वरना दोबारा कैसे पुश करेगा ग्राउंड को? हाँ, तो दूसरे पैर को आगे ले आता है, ऐसे करके कर। I never imagined walking has so much to do. या तो दैट्स व्हाट इट इज, राइट? जब सपोज यू आर गोइंग टू रोबोटिक्स डिजाइनिंग, then you have to think much more than, you think about every muscle, how is it moving when you are working. Only then you can design a machine which can walk like humans. ये तो बहुत छोटा सा सोचा है हमने अभी। ठीक है। मेक सेंस? हम्म। तो आपको देखना पड़ेगा रोबोट गिर ना जाए। सपोज यू आर मेकिंग ये, क्या कहते हैं उसको, ह्यूमनॉइड, ऐसा कुछ कहते हैं आजकल, रोबोट हाँ। अगर बना रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा इसके कैसे स्ट्राइड दे रहे हैं, कितने बड़े स्ट्राइड लेने से अच्छा रहेगा। तो यू हैव टू डू लॉट ऑफ रिसर्च ऑन, ऑन ह्यूमन वॉक और द एनिमल वॉक, and understand exactly how the muscles are moving, how the bones are moving, where is the center of mass, कौन सी चीज किस वेलोसिटी से जा रही है, कौन सा बॉडी का पार्ट किस रोटेट कर रहा है, कौन सा आगे जा रहा है, कौन सा किस वेलोसिटी जा रहा है। ओनली देन यू कैन डिजाइन ए रोबोट, राइट? हाँ, इसलिए जितना इसको सिंपल रखोगे आप कि पुश द ग्राउंड बैकवर्ड, ग्राउंड पुश द फॉरवर्ड, सिर्फ इतना रखोगे तो क्या, देन यू आर नॉट ए डिजाइनर, राइट? डिजाइनर के तो पहला स्टेप लिया हमने, थोड़ी सी बात की है। जितना ज्यादा डिटेल में जाओगे उतना यू विल बी, दैट्स व्हाई आई एम एनकरेजिंग यू टू फील ए लिटिल मोर, राइट? कहाँ से फोर्स ट्रांसमिट हो रहे हैं, यहाँ से साइकिल को ट्रांसमिट हो रहे हैं फोर्स, राइट? लाइक दैट, राइट? तो डिटेलिंग जितनी करोगे उतना यू हैव बेटर चांस ऑफ, एज ए डिजाइनर। ठीक है। हाँ। तो अभी हमारा ये चैप्टर कितना बचा है वैसे? जब तो हम तो एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी, पर इसमें एक चीज हमने भी करनी है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की हमने बात की अभी। ये सारी ऑब्जर्वेशन को उसने सम अप कर दिया, तो ये थर्ड लॉ उसने लिख दिया, हम तो ऑलरेडी कर चुके हैं। बताओ, पढ़ो। Whenever one object is exerting a force on a second object, the second object is simultaneously exerting an equal and opposite force on the first one. राइट। और फोर्स लगता कहां पर है? Well, if it is a contact force, it applies at the contact point. Is it always a contact force? No, it can be a non-contact force also. For example, moon, earth. Earth is pulling the moon by the gravity, and the moon is pulling the earth by gravity. These two are also sort of third law, right? These are also like third law. This is also like third law.
Make sense? Hmm. Magnet, an iron piece, let us say. The magnet pulls the iron piece, and the iron piece pulls the magnet with equal and opposite force. So there's a non-contact एक्शन रिएक्शन पेयर, नॉन कॉन्टैक्ट. बट ये जो था ये कॉन्टैक्ट पेयर है. ये क्या है? कॉन्टैक्ट, राइट? बताओ फोर्स कहां किस जगह पर लग रहे हैं? फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कौन सा है? आई एम गोइंग ए लिटिल बियॉन्ड व्हाट इज रिटन हियर, राइट? दे हैव नॉट टॉक्ड अबाउट द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. बताओ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहां है? At the paddle. एट हेयर, राइट? या Hmm. क्योंकि इसने पानी को यहां पुश किया तो पानी ने इसको यहां पुश किया. ऑल दीज बोथ द फोर्स इज एक्टिंग हेयर. Forward force is acting on the pedal and the backward force is acting on the water. It is acting on the water. So obviously the force acts where the water and the pedal touch each other. Where the water and pedal touch each other. Shall I stop? Wait. ठीक है? Okay. So we understand this law beautifully? The force is always occur in pairs. But remember, these two forces act on different objects. And therefore they don't balance each other. Therefore they don't balance each other. Otherwise तो कुछ होगा ही नहीं. Because one object, only one force, right? Unbalanced force. I hope this point is clear. Yeah. Many daily life observations can be understood on the basis of the Newton's third law of motion, right? A person climbing a coconut tree, कैसे चढ़ता है बताओ? So he puts a downward force on the trunk, and the trunk pushes him up. Right, very good. इसलिए कभी कभी क्या होता है, लोग सिर्फ आर्म से ऊपर करते हैं तो फीट उनके स्लिप हो जाते हैं, बिकॉज दे डोंट पुट द सेम फोर्स विद द फीट. Right. That's a very important point. And same thing is here. Pedal pushing the water backwards and the water pushing the pedal forward. And since the paddle is in the hand of the girl and the girl is on the canoe, so the force from the pedal is transmitted to the girl and to the canoe. And the pedal as well as the girl and the canoe, they move forward together. Right? Okay. I think we all understand the laws reasonably well now. All the three laws, right? We have done a lot of effort in understanding the laws, right? So understanding is improved, right? Okay. अब इसका एक और एस्पेक्ट आ रहा है जी. अब थोड़ा सा ये और एस्पेक्ट आ रहा है. ये थोड़ा और इंटरेस्टिंग है. इसमें बताओ क्या हो रहा है? What's happening? What's So happening? if you open, हाँ, ये हमने बलून के आगे ऊपर एक बांध दिया स्ट्रॉ, और स्ट्रॉ को उसमें रस्सी में डाल दिया थ्रेड के अंदर. हाँ, फिर बलून को खोल दिया तो क्या हो रहा है? हवा इधर जा रही है, बलून इधर जा रहा है. हाँ, हाँ. Balloon is moving like this. Balloon is moving this way. wait, can I try? Yeah, ओके. तो यहाँ पे इट्स ऑन ये जो हमने अभी थर्ड लॉ की बात की थी उस पे है. तो बलून जो है वो स्ट्रॉ से उन्होंने टेप किया हुआ है ना? right, right. और स्ट्रॉ को स्ट्रिंग पे किया हुआ है, जो टू ऐसे डंडियों, मतलब Correct. सपोर्ट्स सपोर्ट्स के Supports. बीच में है. Right. उनके बीच में बांधा हुआ है, स्ट्रिंग को टाई किया हुआ है. हाँ. हम्म, अब बलून को क्या किया उन्होंने, भरा है. हम्म, फिर वो जो जहां से बांधते हैं उसे खोल दिया या काट दिया है, तो हम्म, सारी एयर रशेस आउट हम्म. इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रीन एरो, और Right, बलून मूव्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द रेड एरो. right. तो इसमें जब एयर एस्केप करती है बलून हम्म, बलून से, हम्म. तो द स्ट्रॉ इज द कनेक्शन बिटवीन द स्ट्रिंग एंड द बलून, सो इट पुशेस इट फॉरवर्ड. Right. राइट. फिर उसके बाद क्या होता है, नहीं, स्ट्रॉ वाली अगर बात तो बाद एयर में इज आई. फिर थोड़ा एक स्टेप बीच में मिस कर किया आपने. बैलून एयर रश करके आ रही है, फिर एयर ने क्या किया? उसे पुश किया ऑपोजिट. बैलून को. हाँ. Okay. Now balloon is taped with the straw. So as the balloon moves this side, the straw also moves this way. And since it is able to move because it is so nicely
able to move inside this channel, right? So they move like this. ये सब मैं ना भी करूं, वैसे ही एक बलून के लेके उसको खोल दूं तो बैलून उल्टा चला जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में गिर जाएगा, राइट? एंड द सेम प्रिंसिपल इज रॉकेट इज यूजिंग, सेम प्रिंसिपल इज, बताओ रॉकेट क्या यूज कर रहा है प्रिंसिपल? रॉकेट में इट यूजेस रॉकेट फ्यूल टू प्रोपेल द, मतलब इट emits large amounts of gases that push it down, and these इसमें अंदर क्या क्या भरा हुआ है? इसमें क्या भरा rocket है fuel, रॉकेट के अंदर? rocket fuel. फ्यूल भरा हुआ है। और अगर ये रॉकेट स्पेस में जा रहा है मान लो, तो इसमें एक साइड में ऑक्सीजन भी भरी हुई है या एयर भरी हुई है। अपनी एयर भी साथ लेके जाएगा फिर ये, अगर स्पेस में, क्योंकि वहां तो एयर तो नहीं मिलेगी कंबस्शन के लिए। कंबस्शन के लिए गैस भी तो चाहिए, ऑक्सीजन भी तो चाहिए। Is this Ghana? नो नो, दिस इज नॉट घाना, ये तो इंडियन नेशनल फ्लैग है। Oh, it's Indian. या बीच में कुछ दे हैव ट्राई टू मेक द दिस सर्कल, राइट? द चक्रा, द saffron, the white and the green, right? Yeah, it is very small, so it's Oh. looking like this thing. But many countries have this same color combination. हाँ, वही वही मैं सुना, दूर से घाना का फ्लैग लगा है, वो जो येलो रेड एंड ग्रीन एंड विद द, Yeah, many countries have same this thing. Yeah. But why would they show Ghana flag? It's India written also here, right? वही सोचा था। नहीं, ओके, आई डिडंट सी द इंडिया, लेकिन दूर से इट लुक्स लाइक घाना बिकॉज इफ यू सी दिस येलो बिलो एज वेल। So उसमें क्या हो रहा है बताओ? What's happening? The fuel is burning and lot of flue gases are produced. इनको क्या कहते हैं? What are these called? These are called flue gases coming from exhaust, right? They are coming out with a high velocity. Who gave them velocity? Who gave them velocity? Were they initially moving? Was the fuel moving initially? No. हाँ। But who gave them velocity? Who gave them the force for that? For acquiring a velocity, there must be for acceleration, right? For acceleration, there must be a force. Eh? Please try to understand. Please try to listen every word, right? If it is having velocity, there must have been acceleration. हम्म। If there has been acceleration, there must be force acting on it. Who applied that force? Who applied that force? This rocket shell and this thing. Only this would have applied a force on it. So what will the flue gases do? They will apply an equal and opposite force on the rocket. And due to that, the rocket moves up. The force on the rocket and the force on these gases. So gases get a downward momentum and the rocket gets a upward momentum. And the net momentum was initially zero and net momentum is later also zero. Because plus F and minus F, they cancel each other. Right? You understanding? This F will be equal to what? This F will be equal to M into A. Suppose it that's for T time. So it will be M into A into T, which is like M into V. V is equal to U plus AT, where M is the mass of the flue gases and V is the velocity of these flue gases. रॉकेट के ऊपर भी सेम फोर्स F लग रहा है, तो दैट विल बी इक्वल टू मास ऑफ द रॉकेट इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द रॉकेट। एक्सीलरेशन रॉकेट कुछ और ले तो कैपिटल ए लिख दूं मैं। ये भी सेम साइमल्टेनियसली लगता है ना, तो ये भी टी टाइम के लिए लग रहा है। तो कितना हो गया? m इंटू ए इंटू टी। ए इंटू टी विल बी द वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट। तो एम वी ये ऊपर की तरफ है और ये एम एम स्मॉल एम इंटू वी नीचे की तरफ है। तो ऊपर क्या है? कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी, मास ऑफ द रॉकेट इंटू वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट। और नीचे क्या लग रहा है? मास ऑफ दिस गैसेस मल्टीप्लाइड द वेलोसिटी ऑफ दिस गैसेस। दिस थिंग टुगेदर इज कॉल्ड मोमेंटम। तो अपवर्ड मोमेंटम ये की वैल्यू कितनी है इसकी? इट इज फोर्स इंटू टी एंड दिस इज ऑल्सो फोर्स इंटू टी। तो टोटल कितना हो गया? एफ टी माइनस एफ टी जीरो। दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
तो when this balloon moves like this, the leftward momentum of the air and rightward momentum of the balloon, they exactly cancel each other. They exactly cancel each other. And similarly here, the momentum of the flue gases in the downward direction and the momentum of the rocket in the upward direction, they exactly cancel each other. And the net momentum is zero. I hope you heard me carefully. Right. Okay, we can talk about this again maybe later. तो वन लास्ट पार्ट रिमेनिंग विच इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया आज, राइट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, राइट? वो इस चैप्टर में? इस चैप्टर में ही है, नेक्स्ट पेज तक आएगा, ये है, दीज आर ऑल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है, राइट? दिस व्हाट इट इज। इसको एक बार पढ़ लेते हैं एंड देन वी कॉल इट ए डे। पढ़ो यहां से। The stress material of the balloon applies a force on the air molecules at the side to expel them as it shrinks in size. The air राइट। rushing out exerts an equal force on the balloon material in the opposite direction. This force causes the balloon to start moving in a direction opposite to the direction in which the air is rushing out. राइट, अब देखो क्या अच्छा, है तो आपने, इसलिए आप बता रहे हो, इसलिए कैन यू टू कैन यू एक्सप्लेन चेक टू मी, दिस, कैन यू एक्सप्लेन टू मी क्या लिखा है उसने? ओके, उसने कहा है कि जो भी बलून है, व्हेन यू रिमूव दैट वो कह रहा है मटेरियल बॉस, इस बैलून के अंदर जो था, ओके, एट, एयर के मॉलिक्यूल्स थे, इसमें एयर के मॉलिक्यूल्स थे, ठीक बात है। अब एयर के मॉलिक्यूल्स कहां जा रहे हैं? इधर जा रहे हैं, ठीक है, मगर पहले तो यहां पर थे। तो बैलून ने की जो प्लास्टिक है, स्ट्रेस मेम्ब्रेन, इसी ने इनको पुश किया, इसी ने इनको पुश किया, इसी ने इनको पुश किया, जिससे इनकी वेलोसिटी आ गई। तो फिर ये क्या करेंगे बैलून की स्ट्रेस मेम्ब्रेन को? ये क्या करेंगे? ये ब्राउन की बैलून की मेम्ब्रेन है, तो इसने छोटा फोर्स लगाया, इसने इसको बड़ा सा फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स लगाया, ऐसे फोर्स लगाया। इंटरेस्टिंग। तो ये सारे फोर्स बैलून के ऊपर लग रहे हैं, तो कैन यू सी दैट दे आर राइटवर्ड फोर्स एंड देयर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कंपोनेंट विल कैंसिल ईच अदर। तो नेट फोर्स ऑन द बैलून इज दिस वे, which is same as the net force on the molecules. That's what he's saying. It's done beautifully. The stressed membrane of the balloon applies a force on the air molecules inside to expel them as it shrinks inside. Beautiful sentence. I loved it. NCERT पहले इतना अच्छा नहीं लिखती थी. Now they have done really well. This new book is pretty good, right? To expel them as it shrinks inside. I'll just pause. The stress membrane material of the balloon. This is the stress material. It applies a force on the air molecules. Which molecules which are in touch with it? To expel them as it sinks in size. The air rushes outward, but because of the third law, it applies the opposite force on the balloon. Right? ठीक है, Like that. That's what's happening. And rocket moves in a similar manner. Rocket move in a similar manner. Right? So this air which was there inside this thing, it is being expelled out. It is being expelled out. And then it is, rocket is getting upward thing. In fact, there is something very interesting, Rohan. We can end on that actually. Normally we use rockets like in Diwali also, right? Firecrackers, right? We have these rockets. No? तो रॉकेट में हम फायर लगाते हैं यहाँ पर, तो इसमें से ये इसका होता है, मसाला होता है, ये आग पकड़ता है, हवा लेता है, और ये नीचे गैस रश करती है, एंड द रॉकेट मूव्स अप, राइट? रॉकेट मूव्स अप. तो large number of people, including scientists, they did not really believe in the law of conservation of momentum, which directly comes from the third law. उनको लगता था कि जैसे हम स्विम करते हैं या जैसे रो करते हैं, तो क्या करते हैं रो करने में? आसपास के रो करने, पानी को हम क्या करते हैं जब स्विम करते हैं, क्या करते हैं? पानी को पीछे पुश करते हैं, पानी को पीछे पुश करते हैं, ध्यान से सुन रहे हो? और पानी हमें आगे पुश करता है। तो उनको ये लगता था कि ये रॉकेट जो है,
इसके आसपास जो सराउंडिंग एयर है, इसके आसपास जो सराउंडिंग एयर है, इसको बेसिकली नीचे पुश कर रहे हैं, क्योंकि अंदर से गैसेस आ रही हैं, वो इस एयर को नीचे पुश कर रही हैं अपनी जगह बनाने के लिए। इसको पुश कर रही है नीचे, इसको पुश कर रही है, तो ये सराउंडिंग एयर इसको आगे पुश कर रही है, इसको आगे पुश कर रही है, राइट। तो जब सबसे पहले रॉकेट स्पेस में भेजा, जब फर्स्ट टाइम रॉकेट स्पेस में भेजा भेजा तो लॉट ऑफ साइंटिस्ट बिलीव इट विल नॉट गो। मैनी साइंटिस्ट, फॉरगेट द कॉमन मैन, साइंटिस्ट ऑल्सो बिलीव नहीं जाएगा। एवरीबॉडी वाज क्यूरियस कि स्पेस में रॉकेट जाएगा कि नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? उनको लगता था हवा तो है ही नहीं, तो अगर ये आ रही है नीचे तो उसको रोकने वाला कोई नहीं है, नोबडी इज रेजिस्टिंग दिस, लेट इट गो डाउन। तो सिंस you are not resisting the there is no air to be resisted, it will not push it up, so rocket will not go up, just the flue gases will go down, the rocket will not go up. Many of them felt like this, right? But actually they were wrong, because that's why he explained so beautifully. It is the stretch membrane which is applying the force on the molecules. Similarly, it is this steel which is applying this force on this. अगर ये ऑक्सीजन है, रॉकेट में स्पेस में जाएंगे तो ऑक्सीजन होगी अंदर, और यहां पर हमारा फ्यूल होगा। इस फ्यूल के और एयर ऑक्सीजन के ऊपर इनको दोनों को कौन पुश कर रहा है? ये लोहा। ये लोहा कैसे पुश कर रहा है? एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कौन दे रहा है? कंबस्शन, केमिकल्स। मगर मैकेनिकल फोर्स कौन दे रहा है? ये लोहा। सी द रोल्स आर डिवाइडेड। व्हेन वी मूव फॉरवर्ड, है ध्यान से सुनना है, व्हेन वी मूव फॉरवर्ड वी पुश द ग्राउंड बैकवर्ड, तो फॉरवर्ड फोर्स हमें कौन दे रहा है? ग्राउंड। मगर आगे बढ़ने के लिए काइनेटिक एनर्जी कौन दे रहा है? आवर मसल्स। ग्राउंड इज नॉट प्रोवाइडिंग द काइनेटिक एनर्जी, द ग्राउंड इज ओनली प्रोवाइडिंग द फॉरवर्ड फोर्स। बट मूवमेंट के लिए काइनेटिक एनर्जी भी चाहिए, and that ground cannot provide us kinetic energy. That is provided by the food we eat. That is provided by the chemical energy which converts into work, and that provided. Similarly, when the car move forward, the forward force is provided by the ground, but the motion energy for the car, that is provided by the petrol. Interesting. We can explore this in the next time more, right? This last point, the division of work between the division of the roles between the force and the energy. So this will take us to the energy, right? That will be our next chapter, perhaps, right? Okay, I think let's stop here. Okay. ठीक है, We'll talk about the conservation of momentum little more, and about energy also little more. Okay, okay, bye. थैंक्स, बाय।